इकोनॉमी के रीढ़ की हड्डी हैं। ये उत्सव उनके लिए है और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारी दिल्ली चैप्टर की कन्वीनर मिस तन्वी गुप्ता को मैं आमंत्रित करती हूँ। On behalf of Masa Conclave and Award being organized by Mantras Foundation, I, Dr. Tanvi Gupta, convener Delhi chapter, would like to welcome all of you for your benign presence. We are indeed blessed to have our esteemed panelists with us to support our mission of ecosystem strengthening comprising MSMEs, startups and micro-entrepreneurs. We are honored to have with us Shri Rajneesh Goenka ji, who is the Chairman MSME Development Forum. Thank you, sir. We even have with us Dr. B.K. Sabharwal, Chairman Capital Market Committee, PhD Chambers. We also have with us CA Ashok Goel Devra ji. I think his presence is still awaited. So, he is the former Vice President and Treasurer, BJP Delhi State. We have with us Shri Baldev Gupta ji, Director, Tarun International Limited. We also have with us Dr. Sandeep Marwa ji, Founder, President, AFP. We also have with us Srimati Mamta Binani, Ex-National President, ICSI. May I request all our dignitaries to kindly come on the stage for the lamp lighting ceremony. One more. Stop. Please. May I once again request
Masa to welcome We would now like to welcome Shri Sharat Kohli ji, who is an expert in finance, economics, business and stock market. He is the chairman ACC. May I request Shrimati Mamta Binani ji to do the honors? May I request Mr. Vibhor Tandon ji to welcome Shri Baldev Gupta ji. May I request our President Masa to welcome Dr. Sandeep Marwa ji. Very warm good afternoon to all of you. A very warm welcome on behalf of MASA, on behalf of Mantras Foundation, MSME Development Forum, PhD Chamber of Commerce, and of course the other associations such as Delhi Udyog Vyapar and Manesar Udyog Vyapar who are supporting us in this initiative. It is an extremely great opportunity for me to welcome you on this occasion, on this very august occasion, where all of us have gathered with the single purpose of the insurgence and the growth of MSMEs. I strongly believe that if we want a really happy, powerful, and a really joyful community and humanity, we have to ensure that we fulfill our own duty towards three different entities. पहला ईश्वर के प्रति, दूसरा हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके प्रति, तीसरा राष्ट्र के प्रति. अगर इन तीनों के प्रति हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटीज हैं इनको अगर हम फुलफिल कर सकें तो मुझे लगता है कोई भी ऐसा इंसान नहीं बचेगा जो कि खुशहाल ना हो, जो कि आनंद में ना हो इस पूरी दुनिया में. और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है, the most important thing according to me, if you really want to do anything good, anything great to the society, when you talk about good to great, you know, becoming somebody or something who are able to affect millions of lives, the first and most important thing is that your intention should be absolutely noble and good. आपका जो उद्देश्य है वो सिर्फ यही होना चाहिए कि आप सामने जो है आपकी जो कम्युनिटी है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनका अच्छा करोगे, उनको डेवलप करोगे और उनको आगे बढ़ा के ले जाओगे. एमएसएमईज आज की डेट में और स्टार्टअप्स एक ऐसा सेगमेंट है स्टेक होल्डर का जिनके उत्थान के बिना, जिनके डेवलपमेंट के बिना किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट नहीं हो सकती है. अगर पूरे जीडीपी का लगभग 40% हिस्सा हमें एमएसएमई से मिलता है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हर एमएसएमई, हर स्टार्टअप, हर प्रोफेशनल, anybody who is supporting the entire economy with a business initiative should not only succeed but also reach the heights of success. और मैं ऐसा पूरी तरीके से मानता हूँ कि अगर हम सब मिलके चाहें तो एमएसएमईज को, स्टार्टअप्स को, जो चारों आयाम है जिनके माध्यम से आप उनको बढ़ावा दे सकते हैं, भले ही फाइनेंस हो, टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन या नॉलेज हो, और उसके साथ साथ उनको कनेक्शंस, उनको रीच आउट या मार्केट रीच आउट देना हो, इन चारों में अगर हम उनको सपोर्ट कर सकें तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारा ये सपना कि हर इंसान और हर व्यक्ति इस पूरे सेक्टर में न केवल खुश रहेगा बल्कि नई ऊंचाइयों को छुएगा. और मुझे पूरा विश्वास है कि कोशिश करने वालों की कभी कोई हार नहीं होती. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको. आप सबको इस गर्म मौसम में, ठंडे हॉल में मेरी नमस्कार. एमएसएमईज के लिए और स्टार्टअप्स के लिए बोलने को मेरे को कम से कम
30 मिनट्स चाहिए, हाफ एन आवर। ये कहा गया कि टाइम शॉर्ट है, 5-7 मिनट में निपटाइए। मैं सिर्फ ममता भाई, ये हमारी बंगाल चैप्टर की MSME फोरम की हेड है और शी इज ए सेलिब्रिटी ऑफ बंगाल and she has decorated our forum by accepting to be the convener and president of the Bengal chapter। क्योंकि छोटी बहन है, कद में भी छोटी है, पर मैं जब कलकत्ता जाता हूँ तो मैं खुद को छोटा महसूस करता हूँ इसके सामने। शी इज सो, मतलब बड़े बड़े लोग, कोई MP, कोई वहाँ का TMC का मिनिस्टर, तो सब इसके बाइक के आगे पीछे घूम रहे होते हैं। तो मैं इसलिए अपने आप को ऑनर कराने के लिए इतनी बात बता रहा हूँ कि ये हमारे चैप्टर की हेड है और मेरे को इन्होंने नेशनल हेड बना रखा है। थैंक यू। और विभोर जी ये मासा के मेन आर्किटेक्ट हैं। प्रज्ञा के साथ मिलकर इन्होंने मासा इज डूइंग अपना सोशल, इकोनॉमिक, MSME, स्टार्टअप्स, हम मल्टी फेसेट काम कर रहे हैं। और कई दिन से बात हो रही थी कि दे वांटेड टू डू इट इन दिल्ली। मैं कहा दिल्ली में कर लो। इनके छोटा सा प्रोग्राम होता है कलकत्ता में, जैम पैक हॉल होता है। मैंने कहा भी एक ही दिक्कत है इंडिया में, दिल्ली में ऑडियंस, क्योंकि हमारे MSMEs की, मेरे को भी 10 साल हो गए इनकी पैरवी करते हुए। पर जैसे मोदी जी ने एक कम्युनिटी की पैरवी की, उन्होंने वोट ही नहीं दिया, तो वही हाल मेरे MSMEs का है। सर लाखों रुपए इन्होंने खर्च किए। मैं कहा 20 लोग तो कलकत्ता से फ्लाई करके आए हैं। ऑडियंस में मेरे ख्याल अगर 70-80-100 लोग होंगे तो 20 तो कलकत्ता से आए हैं। अब ऐसे लोगों की क्या पैरवी करे आदमी जिन्होंने आना ही नहीं है। आज इनकी जो पिटाई हो रही है, जिनके मोदी जी जिनकी पैरवी कर रहे थे उनकी भी पिटाई हो रही है, आगे भी होनी है। और MSMEs को मैं हर बार कहता हूँ कि भैया आप इकट्ठे होके आना शुरू करो। आपके लिए मतलब इतने प्रोग्राम करते हैं अशोक जी, आते ही नहीं। तो ये थोड़ा मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भैया आज नंबर गेम है। अगर कुछ करवाना है गवर्नमेंट से, किसी से भी आपको लगता है ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, 45 दिन फलाना ढिंकरा, वो यार इकट्ठे तो हो। हाँ जी, अगर यहीं आज 500 MSME इकट्ठे होते, मीडिया आया और इट वुड हैव सेंट ए लाउड मैसेज टू हायर अप्स। तो उसके लिए अशोक जी हमारे गोयल मेरे भाइयां, आज से नहीं 25 साल से। मैं चाहूँगा अशोक जी थोड़ा सा आप अब जुड़ के देखो, कहीं पे भी कोई काम जब तक पॉलिटिकल विल ना हो नहीं हो सकता। किसानों का क्यों होता पॉलिटिकल विल है? बिकॉज दे आर वोट बैंक। किसी का जो ये बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं इनका इसलिए होता दे आर नोट बैंक। हमारा इसलिए नहीं होता कि नाइदर वी आर वोट बैंक नॉर वी आर नोट बैंक, इकट्ठे नहीं होते वोट बैंक। तो सर नोट बैंक नहीं बनना है, वोट बैंक बनो। हम आपका ढोल बजाते हैं अशोक जी और हम कि भाई 60 करोड़ है, इतने हम हुआ है, उससे हमने थोड़ा लड़ा के MSMEs की इस देश में पोजीशन बनाई। आज से 5 साल पहले कौन MSME को जानता था? अब मोदी जी ने हमारी ड्यूटी लगाई 2014 में, तब से ढोल पीटते पीटते 5 साल तो हमारी दुकान पे नहीं आता था कोई। कहते MSME, कहते गोयनका जी आगे हो जाओ। ये तो अभी 2-4 साल से मोदी जी ने कराया तो MSME की पोजीशन बनी। अशोक जी से मैं चाहूँगा कि वो हमारे अगुवाई करें पॉलिटिकली, क्योंकि पॉलिटिकल के बिना कुछ हो नहीं सकता। अब शरद जी जैसे इकोनॉमिस्ट, टीवी पैनलिस्ट, कौन है, कोई रशिया की अमेरिका की लड़ाई लगी हो तो शरद जी बोल रहे हैं, कभी ये अमेरिका से बोल रहे हैं, कभी ये रशिया से बोल रहे हैं। मैं कह यार आप तो दोनों पासे बोलते हो। कहते मैं ट्रू इंडियन हूँ, मोदी जी भी सबके साथ हूँ, मैं भी सबके साथ हूँ, पर हमें ही इज अवर नेशनल बोर्ड मेंबर ऑल्सो,
तो इनका हमें बहुत सहयोग मिलता है। जो लोग इनके पीछे पीछे घूमते हैं इनका टाइम लेने के लिए, हमें फिर फोन आता है, कहते हैं शरद कोहली जी से भेंट करा दो, तो हम करा देते हैं। सब्बरवाल जी मेरे 15 साल से पीएचडी में मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, और ये इनका फोकस एक ही लाइन पे है। हम तो है नहीं, इधर उधर होते रहते हैं, स्टॉक मार्केट, शेयर्स, और ये सारा इनका फोकस है। बिल्कुल इस समय पता नहीं कितने नोट इन्होंने कमा लिए, बताते नहीं है। सारे के शेयर्स इनके लेके रखे हैं, ही इज वन ऑफ देम। और जो एक्चुअली जिनके साथ बैठने का मुझे मौका मिला आज फिर, संदीप भाई, संदीप मरवा, आप देखो कि इनकी शक्ल जो है ना जी, वैसे रिश्तेदार है, मुझे तो अनिल कपूर लगते हैं बिल्कुल, और वैसे इनकी रिश्तेदारी भी है। मैं एक दिन इनकी पार्टी में था, अनिल कपूर, बोनी कपूर सब थे वहां पे, और ही इज सच ए मल्टीफेसेड पर्सन। मैं इसलिए नहीं कि ये यहाँ बैठे हैं इसलिए बात कर रहा हूँ। आई एम सो इम्प्रेस्ड विद हिज पर्सनैलिटी, ही इज सो हम्बल। आज 5 मिनिस्ट्रियों की तो नेशनल बोर्ड में और उनकी उसमें चेयरमैन है। अभी बता रहे हैं 76 कंट्रीज ने इनको अपना डी फैक्टो एम्बेसडर अपॉइंट किया, नॉमिनेट किया। एंड इनकी एक हम्बलनेस है। ही सेड आई एम फॉर एमएसएमई, आई एम फॉर स्टार्टअप्स। और अभी ये जिस सब्जेक्ट में आपसे बात करेंगे, आप इनको सुनेंगे तो हम लोग यानी कई बार ना ये बोल रहे हैं, हम बोलते नहीं है, क्योंकि ही स्पीक्स इन सच ए फ्लो, इनके पास इतना कंटेंट है, इतना सब कुछ है, हम संदीप हम नीचे हो जाते हैं। अच्छा ऐसा है हमारे, हेलो हेलो हेलो, हमारे जो चेयरमैन भाई साहब इमोशनल हो जाते हैं, तो वो इस तरह सभी के मैंने बहुत इमोशनल होके ही कीप स्पीकिंग अबाउट एवरीवन, इट्स वेरी हम्बल ऑफ हिम। तो हम लोग सबसे सुनेंगे भाई साहब, और हम लोग कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो मैं मतलब सब्जेक्ट पे बोलूँगा एक मिनट कि सबकी कहती धूपबत्ती करते रहोगे, अपना सब्जेक्ट पे भी बोलो। चलिए, एमएसएमई मेरा मेन फोटे है, और देश अगर चाइना का ऑल्टरनेटिव बनना चाहता है, जो कि वर्ल्ड देख रहा है, वर्ल्ड बनाना चाहता है, तो हमें अपने एमएसएमईज को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मेरा दूसरा ये है कि एमएसएमई शुड ज्वाइन, दे शुड ज्वाइन टुगेदर, दे शुड कलेक्टिवली जब काम होगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारे इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होंगे। और हमारे पास, मैंने एक्चुअली प्रज्ञा भाई इनको इसलिए करा मोटिवेट, अल्टीमेटली इन्होंने एमएसएमईज को वहाँ तक पहुँचाना है, ठीक है ना। दे आर द पीपल, दे आर योर एम्बेसडर्स। आपने जो आज प्रोग्राम किया, मेन जो है सफलता इनके कारण होगी। मतलब जो ऑडियंस है वो तो होगी, पर देर अभी मुझे संदीप भाई से बात हो रही थी, कितना ये मन में लेके बैठे हैं, कहाँ तक आपको ये ऊपर लेके जाएंगे। एमएसएमई के बारे में देखिए, देयर आर सो मेनी पीपल हु विल स्पीक। मैं भी बोल बोल के मेरा टेप रिकॉर्ड थक गया कि सर एमएसएमई ग्रो करो इस देश में, इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी किसी दुनिया में नहीं है। अभी रशिया ने मेरे को बुलाया एमएसएमई का समझने के लिए कि हाउ इंडिया इज ग्रोइंग। सो वर्ल्ड में यू आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड। आप सिर्फ ये है कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लीजिए। आने वाले 5 साल जिस एमएसएमई ने पैसे नहीं कमाए वो घर छोड़ दे। इतनी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में और वर्ल्ड वाइड, और स्पेशली फॉर एमएसएमईज। उसमें क्या है, 3 C चाहिए, करेज, कन्विक्शन एंड कंटिन्यूटी। 3 चीजें करिए एंड यू हैव द, हमारे पास सब कुछ है। अभी मरवा जी ने इनवाइट किया कि इनके स्टूडियो में हमारे पास 1800 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है। IID रिसेंटली जॉइंड अस इन द फोरम। उनके हम आपको किसी दिन अलग से बुलाएंगे और आपको प्रेजेंटेशन देंगे। प्रज्ञा, ओके, थैंक यू जी, नमस्कार। First of all, I thanks all the
honorable audience. On the dais, Rajneesh ji has said something. I will certainly like to counter few of the things out of what he has said. Rajneesh Goenka ji had been my colleague in PhD chamber for last 16 years, sir, at least. And he was the chairman of the MSME committee of the PhD chamber also. I respect him for one reason more also, that he was to become a part of the management of PhD. He was due to become even the president also, but because of certain politics, he could not. But I know his capacity, that as a chairman of MSME committee here and now in MSME Development Forum, I will just take few seconds. Pragya, if you allow me, for PhD is the oldest chamber in the country. It's from 1906. My two other colleagues, executive, I will talk of them. Just Sandeep Marwaji also is a part of the managing committee of the PhD. He used to head the entertainment committee, and we remember him that the maximum programs in the entertainment committee is, if done by anyone, it is done by the Mr. Dr. Sandeep Marwa only. And as told by Rajneesh ji, he is a brand ambassador of 76 countries, and his performance as far as this particular sector is concerned is par excellence. I can only use this word. My younger brother on the dais, Mr. Ashok, a professional colleague also, Mr. Ashok Goyal Devraji, though it was told that he was the ex-vice president of the BJP. I am not talking of the ex only. He is going to be the next MLA of the BJP from the Model Town constituency and will be the part of the Delhi government, because now the Delhi, we are sure that BJP government will come back. My another professional colleague on the dais, Mamta ji, was the president of the Institute of Company Secretary, and now she is also, as I am told, that part of Pragya as well as Rajneesh Goenka also. But yes, a true professional. I was told by her husband is known, one of my, you can say, student is her husband's friend. So I know her for that reason. And today only I have discussed with her. 12 issues are coming. She said she is preparing for that. And sky will be the limit. I will like to tell Rajneesh Goenka ji also that this is the high time. The Bombay Stock Exchange person who is looking after the MSME registration is right among us. It is the high time that when we can start thinking of more and more MSME to come in the public. And I will, let me tell a little bit about the others, and then I will be speaking on, I will like to counter what you had said. Mr. Sharad Kohli ji is a true economist. He is seen on many TV channels. I used to come previously, but now I have seen him there. And many of us stockbrokers are the larger investors of the country, follow his advice also. And that's what Mr. Sharad Kohli ji is also among us. As Rajneesh ji said, that we are not together. MSME is about banks up. It has only to become together. There are 6.7 crore MSMEs in the country. If you say an average 10 people are also employed by them, if not more, then there are 60 crore people who are, and we are talking of startups also today. There are 1.17 lakh startups there. I was just discussing with Pragya and Vibhor even yesterday also, that there is a lot of opportunity in this sector. Many of my professional colleagues are sitting in front of me also, few managing committee members, few other senior professionals
though I am not naming because I will be crossing my time. But let us take it this way, though I am in the helm of the affairs of the capital market for last 20 years, being in most of the association and associated with the capital market committee. PhD is an organization since 1906. They have indirectly 150,000 members, and one of the highest MSMEs are our member. Now it is a time that when Rajneesh Goenka, Pragya, the economist, and even if Sandeep Marwaji and politicians, if they joined hand together, the sky can be the limit. If more and more issues of MSMEs comes in Bombay or in NSE emerge, we will become, Goenka Sahab, we are going, MSME is going to become a vote bank bigger than, I am saying, bigger than even the farmers of the country. Today, because of the casteism, the few votes have gone to the other side. But if MSME unites, I am telling you, we being the capital market people know that what is the potential of the MSME. Today, most of the issues which are coming in MSMEs are, they are being oversubscribed from 100 times to 800 times. A person is asking for 60 crore of rupees and the offer is coming for 10,000 crores of rupees. That is the potential. Because another 5-year stable government has come, and without making MSME progress, MSME is a dream of the current Prime Minister, and without taking MSME forward, it will not be possible. So we invite you also, all of you, that who wants to tap the financial markets or tap the capital market, there is a huge potential, and the early mover advantage will be there for those MSMEs. There are some norms. The Bombay Stock Exchange person is right there with us. We can understand from him even later also. Immense potential is there, and then even the capital is likely to grow. What MSME needs today is the money to run the companies, and the money can come from the capital market. Even today has touched the all-time high. तो आज अपना पर्पस ही ये है कि आज देखिए हम लोग सब एसएमई सब बेचारे तो हैं नहीं, ये बात फैक्ट है. वी आर वेरी वेरी एम्पावर्ड एंड वी ऑल जस्ट नीड अस. हम लोग लेट अस वर्क ऑन द इनर सर्कल. यही सोच के साथ हम लोगों ने जब ये मासा कॉन्सेप्टलाइज किया, मासा इज एमएसएमई एंड स्टार्टअप एक्सेलरेटर, तो आज का जो अपने सेशन रखे हैं पैनल डिस्कशन, दिस इज टोटली बेस्ड. तो ये एक सेंसिटाइजेशन था. साबरवाल अंकल ने एकदम सही तरीके से सबको सेंसिटाइज किया है कि कैपिटल मार्केट को हम लोग कैसे टैप कर सकते हैं. इसलिए हम लोग का जो पैनल डिस्कशन होने वाला है, आई थिंक दिस विल बी द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एनी प्रोग्राम कि बीएससी, एनएससी एंड एमसीएक्स सब स्टॉक एक्सचेंजेस से जो उनके हेड्स हैं वे आए हैं आपको बताने के लिए कि कैसे हम लोग वो टैप कर सकते हैं. तो आज के हम लोग जितने भी डिस्कशंस करेंगे, वी विल बी स्पीकिंग ऑन सॉल्यूशंस. सबको ये सेंसिटाइजेशन अब हो गया कि अपने को क्या करना चाहिए, कैसे करना है. आज के हम लोग के पूरे प्रोग्राम्स में वी विल बी डिस्कसिंग ऑन द हाउस एंड थैंकिंग साबरवाल अंकल फॉर हिज डेलिब्रेशन. आई विल टेल तन्वी टू टेक ओवर. सभी को मेरा नमस्कार. और आज इस पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इमीडिएट डायस पे बैठे हुए मेरे बहुत ही मित्र और एमएसएमई के लिए जिन्होंने अपनी बहुत जान लगाई और उनकी बातों से जो झलक भी रहा था पेन, तो ऐसे रजनीश गोयनका जी, एक बार जोरदार उनके लिए तारीफ तो बनती है. सबरवाल जी जो कि उनको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे थे मेरे शब्दों में, उनको सप्लीमेंट कर रहे थे, उनके पेन को सप्लीमेंट कर रहे थे. तो ऐसे हमारे मित्र सबरवाल जी, शरद कोहली जी, संदीप मारवा जी, बलदेव जी, ममता बयानी जी, विभो टंडन जी, प्रज्ञा जी जो खूबसूरती से इसका संचालन भी कर रही है और समय समय पर बता भी रहेगी और टाइम इज़ आउट. एंड यहाँ पर बैठे हुए सभी एमएसएमई के मेरे भाई और बहनों, मैं सबको आपको
नमस्कार करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, MSME इस हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और सही मानों में जो हमारे आत्मनिर्भर भारत का जो मूल मंत्र है वो MSME है। महात्मा गांधी जी ने कहा था बहुत वर्षों पहले कि हमें अधिक से अधिक प्रोडक्शन चाहिए, लेकिन वो प्रोडक्शन कैसा चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व, यानी कि हमें वी नीड प्रोडक्शन ऑल्सो बट वी नीड पीपल ऑल्सो, जो उसको ज़्यादा लोग उसको प्रोडक्शन को करें। और जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी जो आर्थिक चिंतन था वो भी यही था कि जब तक अंतिम व्यक्ति का उदय नहीं होगा तब तक ये देश महान नहीं बन सकता। और कुल मिलाकर इस देश के अंदर आज जो हमारी 140 करोड़ देश की आबादी है, ये महात्मा गांधी जी के वक्त हम 50-52 करोड़ थे, तो उन्होंने देखा कि एक इम्बैलेंस है, कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है। जब तक हम उन सब लोगों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, जब तक उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होगा, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। और आज जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका एक ही मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो जो महात्मा गांधी जी का जो विजन था, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विजन था, उसी विजन को आगे लेकर नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। और उनकी हर बात के अंदर, जैसे कि अभी रजनीश जी ने कहा, सब्रवाल जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अगर उनकी सबसे बड़ी कोई प्रायोरिटी है तो वो MSME, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी दुनिया है जो वर्षों से उपेक्षित थी। काम करते हैं। आज उद्यम पोर्टल में 1,85,00,000 ऐसी एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड हो गई है जो अपने आप में, जिसको फॉर्मल सेक्टर करने का काम इस सरकार ने पहली बार किया है, जिसमें 11,70,00,000 में आज डाटा पढ़ रहा था कि ये ऑफिशियल फिगर है भारत सरकार की, 1.85 करोड़ एंटरप्राइजेज MSME में रजिस्टर्ड हैं और उसमें 11,71,00,000 लोग आज के दिन काम कर रहे हैं। और ये जो इनफॉर्मल का जो फॉर्मल के अंदर इंक्लूजन हो रहा है, आज आप देख रहे हैं कि GST बढ़ रही है देश के अंदर। कहाँ हम 80-90 हज़ार करोड़ से शुरू हुए थे, अभी 2 लाख करोड़ हमने क्रॉस कर दिया है। भारत का उदय हो रहा है। आज जो MSME है, हमारी GDP में उसका 29% शेयर है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास मनी पावर नहीं। अभी रजनीश जी कह रहे थे, आज 29% हमारी GDP में जो शेयर है वो MSME सेक्टर का है। और हमारा जो पूरा एक्सपोर्ट जो बढ़ रहा है, अभी पीयूष जी बता रहे थे कि हमने कितना बिलियन एक्सपोर्ट हमने ऑल टाइम हाई किया है और अभी टारगेट 1000 बिलियन के है, तो उसमें 30% हिस्सा MSME सेक्टर का है। यानी कि जो MSME सेक्टर है बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। और पिछले 10 सालों में जो नरेंद्र मोदी ने किया है और नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, मैं ये कह सकता हूं कि MSME के लिए अगर मैं कहूं कि नरेंद्र मोदी भगवान है तो ये भी कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने जितना काम पिछले उन्होंने कहा कि भाई कैसे प्रमोट किया जाएगा, पहले तो इनकी परचेजेज कैसे हो। उन्होंने कहा कि जितनी भी सरकारी परचेज होगी उसका जो 25% हिस्सा है वो किससे आएगा, MSME से आएगा। रिजर्व कर दिया, रिजर्व कोटा का डाल दिया, जैसे कि हमने आजादी के समय कोटे डाले थे, ऐसा ही कोटा उसके डाल दिया। उसी में एक कोटा और डाल दिया कि उसमें से 3% वुमन एंटरप्रेन्योर होंगी जिनसे लिया जाएगा। यानी कि देखिए आप कितनी बड़ी बात इस सरकार ने किया। और 200 करोड़ रुपए से जो परचेजेज होंगी उसका ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। यानी कि अभी तो पहले तो सरकारें ग्लोबल टेंडर करती थी, अगर 100 करोड़ पे भी ग्लोबल टेंडर करती थी, बाहर की कंपनियां अगर उसमें अपना टेंडर देती थी, क्वालिटी उनकी अच्छी, रेट भी उनका कम, तो कौन परचेज करेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा कि हम लोग 200 करोड़ रुपए तक की जो भी परचेजेज होगी उस पे सिर्फ भारत की ये कंपनियों से करेंगे, जिसका उनके सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कोई है तो वो कौन है, वो MSME सेक्टर है। तो ये उनका विजन है। वो कहते हैं कि आपको आगे आके परफॉर्म करना है, आगे बढ़कर परफॉर्म करना, अपनी क्वालिटी अप करनी है, अपने रेट्स को कम करना, अपने स्केल को बढ़ाना है। कल को आप लोग आकर ये रजनीश गोयनका जी एक डेलीगेशन लेकर आए कि ये 200 करोड़ नहीं है 500 करोड़ का ग्लोबल टेंडर नहीं होना चाहिए, ऐसी मांग आपकी तरफ से आनी चाहिए और आप लोगों के अंदर इतना जज्बा होना चाहिए। तो कुल मिलाकर पिछले दिनों के अंदर जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, भारत ट्रांसफॉर्म कर रहा है,
और भारत आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और भारत एक स्काई बिल्कुल क्लियर है। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि तीसरी बार मैंडेट कम मिला है, इस बार कुछ ऐसा लगेगा, लेकिन मैं अभी निर्मला सीतारमण जी का वो अभी कल ही परसों को स्पीच सुन रहा था, और वो कह रहे थे कि जो हिंदुस्तान के जो खिलौने वाला उद्योग है वो मेरी टॉप प्रायोरिटी है। हम लोगों ने उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं की, आज बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन जो भारत सरकार इन दिनों भी कर रही है कि रैंप स्कीम के द्वारा अपग्रेडेशन कर रही है, और आईपी फैसिलिटेशन सेंटर के द्वारा उनको एम्पावर कर रही है, ट्रेडमार्क रजिस्टर कर रही है, कितने सारे काम जो भारत सरकार है वो एमएसएमई उद्योग के लिए कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाला दिन, जैसे कि उन्होंने कहा, हैंड होल्डिंग भारत सरकार ने की जब कोरोना था, तो कुल मिलाकर आप ये देखिए कि भारत सरकार ने कहा कि ये मोदी सरकार ने कहा कि ये एमएसएमई कहीं मर ना जाए, कहीं ये इसका नुकसान झेल ना पाए। उन्होंने कहा कि बगैर किसी गारंटी के, गारंटी किसकी थी? मोदी की गारंटी थी। गारंटी मेरे एमएसएमई भाइयों के लिए गारंटी मोदी की थी। उन्होंने कहा कि जितना लोन एमएसएमई ने ले रखा है उसका 20% लोन बगैर गारंटी के सारे बैंकों को ऑर्डर कर दिया कि इसकी गारंटी भारत सरकार की है, आप हमारे एमएसएमई भाइयों को दे दो। तो मैं उसका डाटा पढ़ रहा था कि 1,19,00,000 लोगों ने, यानी कि एंटरप्राइजेज ने, और करीब 19 लाख करोड़ रुपया वो भारत सरकार ने उस पीरियड में दिया उनकी हैंड होल्डिंग करने के लिए। और उसके बाद आपने देखा कि कितने फ्लाइंग कलर से एमएसएमई ने काम किया, और उन्होंने परफॉर्म करके भी दिखाया। पीपी किट पूरे हम चाइना से और पता नहीं कहां से इंपोर्ट करते थे। नितिन गडकरी जी हमारे मंत्री थे, मैं उनको सुन रहा था, गडकरी जी ने बताया कि मैंने पीपी किट के लिए लोगों को ट्रेन किया और हमारे एमएसएमई सेक्टर ने प्रूव करके दिखाया, और बाद में नरेंद्र मोदी जी से उन्होंने परमिशन ली कि हम पीपी किट को एक्सपोर्ट करने के लिए अलाउ कीजिए हमें, क्योंकि हमारे जो एमएसएमई सेक्टर ने परफॉर्म करके दिखाया। और 100 से ज्यादा कंट्री में पीपी किट को एक्सपोर्ट किया, उसका जितना भी श्रेय दिया जाए वो हमारे एमएसएमई सेक्टर को देना चाहिए कि उन्होंने उस कोविड काल में भी परफॉर्म करके दिखाया। सैनिटाइजर था, जो सैनिटाइजर को भी बनाने में जो हमारे इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। बहुत सारी चीजें ऐसी है। मैं वो खादी उद्योग को देख रहा था कि आज से 8 साल पहले 25,000 करोड़ की सेल थी, पिछले 8 साल में 4 गुना, यानी कि 1 लाख करोड़ की सेल को क्रॉस करने का काम हमारे खादी उद्योग ने किया, जो कि सबसे बड़ी वेंडर है एमएसएमई की। आज हम लोग के साथ जब इस तरह के वरिष्ठ नेता जुड़ते हैं और हम लोग से स्टैटिस्टिक्स शेयर करते हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा पर्पस होता है कि हम लोग को भी पीठ थपथपाने वाला काम होता है। आगे बढ़िए, परफॉर्म करिए, सरकार आपके दरवाजे पे खड़ी है। नरेंद्र मोदी की सरकार 2 वे कम्युनिकेशन करती है। आप लोग जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा वो सोचती है, आप जो उनसे चाहते हैं उससे ज़्यादा वो करना चाहती है। अगर आप 1 कदम आगे बढ़ेंगे तो 10 कदम सरकार आपकी तरफ आएगी। जितनी भी आपकी मांगे हैं जिससे कि ये इंडस्ट्री चल सके, इसको क्रेडिट मिल सके, तो कुल मिलाकर जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि एमएसएमई कैसे चलेगी अगर उनको पैसा नहीं मिलेगा टाइम पे। तो मैं किसी टाइम पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रेलटेल में डायरेक्टर था, तो उस वक्त ये प्रोविजन लेकर आया कि जो 31 मार्च को एमएसएमई का पैसा आउटस्टैंडिंग है तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, यानी कि पीएसयू को बताना पड़ेगा, नेम एंड सेम होगी। और अब उससे आगे बढ़ गए कि भाई इनकम टैक्स में भी अमेंडमेंट आ गई है कि भाई जो आदमी पेमेंट नहीं करेगा उसको एक्सपेंसिव अलाउ नहीं होगा, जिसके लिए इतनी बड़ी सजा उस कंपनी को मिलती है कि डिसअलाउ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर एमएसएमई के लिए, जिसके लिए विरोध और प्रदर्शन भी हो रहे हैं, हम लोग जाते हैं तो सुनते हैं उनसे कि ये क्या हो गया है, क्योंकि इट इज अ फेवर टू एमएसएमई और भारत सरकार लगातार आपके साथ खड़ी है। आप जितना परफॉर्म करेंगे, जितना काम करेंगे, मैं आपको वादा करता हूं और ये अश्योर करता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। आपने मुझे सुना, पीएचडी चैम्बर ने मुझे अवसर दिया, मैं पीएचडी चैम्बर का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। अशोक भाई, आपको जस्ट एक चीज बताना चाहती हूँ, जो आपने कहा ना स्कीम्स वगैरह की बात, तो आज अपने पास इतने स्कीम्स हैं, वो परकोलेट करें एमएसएमईज तक, इसके लिए भी हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए। सो आज मासा का एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है कि हम लोग इस तरह के जो ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हैं, जिसमें हम लोग जेम पोर्टल के बारे में शिक्षा देते हैं, एमएसएमई स्कीम्स खाली ये नहीं सेंसिटाइज नहीं करते क्या है, हैंड होल्डिंग भी करके देते हैं। जैसे अपने बहुत सारे चेंबर्स भी हैं जो सारे स्कीम्स का बेनिफिट नहीं ले पाते हैं, तो अपने पास पूरी ऐसी प्रोफेशनल टीम है। और आप लोग जैसे लोग आज यहाँ पे जो मंच पे जुड़े ना बहनों भाइयों, इनको हम लोग जाने नहीं देंगे, ये सब हम लोग के साथ जुड़े रहेंगे।
हम लोग की मेंटरिंग करेंगे, बिकॉज एक्सपर्ट्स चाहिए ना हम लोग को, चाहिए कि नहीं? हम सब उद्यमी भाइयों को ऐसे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। तो ये हमारे मेंटर नेटवर्क हैं जो हमारे साथ हर समय खड़े हैं, और जितने भी स्कीम्स हैं, चाहे फंडिंग सपोर्ट है, हम लोग को जो हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, उसके लिए हम लोग को जो बैकबोन चाहिए, ये मेंटर से ही मिलेंगे। What a pleasure to be here this afternoon with all of you on this beautiful, well-designed program at PhD. Let me take this wonderful opportunity to extend my heartiest congratulations to the organizers, and also my special thanks for inviting me here and giving me this wonderful opportunity to be part of this program. Respected Goenka ji, Sabharwal ji, Ashok ji, Sharad ji, Mamta ji, Vibhor ji, Gupta ji, or Jhunjhunwala Madam ji. Let me start with two lines which I am recollecting. कि स्वयं विधाता होवे मानव, अंतर में विश्वास जगाओ, चलो न मिटते पद चिन्हों पर, अपने रस्ते आप बनाओ, अपनी आत्म ज्योति पर निर्भर, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ. Now what I'm trying to tell you here, God has been actually very kind. He has bestowed upon us all those powers which He possesses Himself. G-O-D, God, an unseen power which can generate, which can operate, and which can destroy. Isn't it right that God has bestowed all those powers to us? It is entirely up to us that which power we would love to use for which purpose. And I think, if I'm not wrong, it's a high time for all of us, especially for MSMEs, to take this as a tone of the day and start working rigorously for the promotion of the country. And if I'm not wrong, any industry which has gone out of way to use this power is no other than media and entertainment industry. My dear friends, without taking much of the time, I know time is a limit today, but I just want to inform you that media and entertainment industry is one of the best industries today in this country, which is growing at the rate of 12% to 14% per annum. Whereas the total GDP has been growing at the rate of 7%. And I've been a member of management committee for PhD Chamber of Commerce for now almost 19 years. And 10 years back, we realized that it is very important to actually have another chamber to look after the media and entertainment industry in this country, and we created International Chamber of Media and Entertainment Industry. And I'm happy that because of that new chamber, which is now 10 years old, the purpose of the chamber was also only to support the vision of our Honorable Prime Minister to have best of the relation possible with each and every country of the world. Yes, imagine an industry which makes around 2,000 feature films in a year. We make around 200,000 hours of television program. We have almost 350 radio stations, 950 television stations in this country, 40,000 newspapers in 28 different languages, and another 40,000 magazines which are in 28 different languages, almost 120 crore mobiles, out of which 60% of mobiles are smartphones. Imagine the size of the industry. And pre-pandemic, I must tell you, because why emphasis on this industry? Because the whole industry is nothing but MSME. The whole industry is working in MSME, and the turnover of this industry was almost 1,80,000 crore. Pre-pandemic I'm talking about, and after a huge massive losses during pandemic, this industry is the first one which has jumped back, and now we are about to touch 3,80,000 crore rupees in this industry. We are about to touch 4 lakh crore probably in another year or two, and I'm happy that media and entertainment industry is going to be the 6th biggest industry of the nation. I think nothing more can be said of as far as this industry is concerned. And I'm coming back to the first 2 lines, because those lines represent nothing but a beautiful word which has been actually quoted by our Honorable Prime Minister. And the word is, which my friends have already uttered many times, Atmanirbhar. It's very important to remember this word Atmanirbhar. If you look at the literary meaning of this word, it means self-reliant or self-sufficient.
But being ambassador of Atmanirbhar, I have given a new definition to this word Atmanirbhar. In my language, when I say A stands for being ambitious. Time has come when everyone has to be ambitious, rather over-ambitious, to look into new projects, new setups, new businesses, new startups, so that we are today the 5th biggest economy in the world, and we are marching towards 3rd biggest. That is only possible if you have that kind of enthusiasm and a dream to look upon. And dreams are not the one which comes in your sleep. Dreams are the one which should never let you sleep. When I say T stands for techno-savvy. Pandemic has taught us enough, I think. During pandemic, we have learned how to operate mobiles, how to operate laptops, how to operate new applications, but mindset has to be absolutely open to accept many new things which are marching towards us, including artificial intelligence, blockchains, metaverse, and many new applications which even I don't know and you don't know. In a span of another 3-4 years, the techniques are going to take over all sort of businesses, whatever business you are in. So you have to be mentally prepared for that if you really want your business to grow in a much bigger and a better way. When I say M stands for being motivated. Nobody's going to come and say, come, I'm going to motivate you. But then I think motivation we have to bring from our own self if we want all these MSMEs to grow in life. Yes, because motivation is not for sale, by the way. Otherwise, you would have gone to any of these markets and would have purchased maybe some kg or some grams. But it's not available. So we all have to be self-motivated to see to it that whatever business we are doing, whatever little or big business we are doing, we have to raise to a new height, new level, and every day we have to raise the level of our income and our business. When I say the next A stands for attitude. Time has come and we have to go back and bring back our culture into the system. We all have to be very humble, polite, down to earth, supporting, compassionate, passionate, and sympathetic, so that we should be able to support each other to come up. If we are not going to bring that kind of attitude into our system, probably we may not be able to reach to all those dreams what we are planning for the next few years. When I say N stands for being nationalist. You have to be nationalist, patriotic. You have to love your country. Unless and until you're going to love your country, you can never grow. Because the minute you feel that, yes, I love my country, a new energy comes in and you start working probably more hours of work, more money you are ready to put in, more standards and levels you're going to raise in a shorter period of time. And I can only say that कि जिस ओर चले हम मस्ती में झुक जाए उधर अंबर भूतल आजाद वतन के बाशिंदे हर गीत हमारा है बादल विविध प्रांत है अपनी अपनी खत्म तो होने दो जिस ओर चले हम मस्ती में झुक जाए उधर अंबर भूतल आजाद वतन के बाशिंदे हर गीत हमारा है बादल विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम लेकिन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम. You have to be very important in absorbing the information, divide your information into two major things, nice to know and necessary to know. Necessary to know grabs fast, nice to know you can always delay it. And when I say R stands for research. I'm very happy because I've been working on research for 30 years. And 3 of the major programs which Prime Minister Office has accepted me. I have no time to discuss that. But yes, research is one of them, and research, keep in mind, unless until you go back and learn a little more about your businesses, the past, the current, and what all happened, including your own history, you will never be able to take a very strong and a bold step. When I say B stands for believe in yourself, develop a conviction, and then start working. Believe in government, believe in administration, believe in your staff, believe in your people, believe in your suppliers and buyers. You're bound to do better than what you're doing today. H stands for humanity, because I believe there is no religion which is better than humanity. Keep your
personal religions in your doors, and the minute you are out of your house, humanity should be the only religion for Indians, I think. And last but not the least, when I say A, here A stands for all-rounder. Learn little more than what you are already doing, because you never know, things are moving so fast in India. Probably you may be able to catch on another very important business in a just short period of time, and maybe doing better than what you are doing in your last business. And the last is R, which means result oriented. So anything and everything what you are trying to get into, please remember it must bring some kind of result. With all these words, I extend my heartiest thanks to you, ma'am, for inviting me here. And before I leave, I must say that कि विभासित कर गगन भूतल, तिमिर को ज्योति देता चल, निराशा के अंधेरे को मिटा दे ले प्रभंजन बल, कहीं पूनम अमावस्या, कहीं उलझन, कहीं फिसलन, कहीं कांटे, कहीं पहरा कटिल बंधन। यहाँ प्रतिकूल है सब कुछ, कहीं मरुस्थल, कहीं बादल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्जवल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्जवल। जय हिंद, जय भारत। Jai Hind. And while we move on to the second panel, Dr. Sandeep First- Verma, I will like to request you two things. Your vision for Atma Bharat. We will like to keep an exclusive program with just you to speak on the Atmanirbhar Bharat. And Pragya, let me advise you that he has said 10 years back they have formed another chamber of the media and entertainment, and this is from the capital market point of view is a very untapped chamber. There many of their companies are not in the capital market. So Mamta, for you and for her, there is immense opportunity available. सर ये वही थे ना, अभी ट्रेलर है, मैंने वही अपने सारे यहाँ पे जितने अपने तो सारे MSMEs भाई बंधु हैं, तो उनको ट्रेलर दिखा रहे हैं कि अपने साथ ऐसे ऐसे मेंटर्स जुड़े हैं और हम लोग इनको छोड़ने वाले नहीं है। इनसे अलग से पूरा हम लोग वर्कशॉप लेंगे। सर ये आज आपसे इस मन से हम लोग सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब हम लोग आपके थ्रू वर्कशॉप्स लेंगे, प्रॉपर मेंटरिंग ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के ही लोग रहेंगे और आप एज अ ट्रेनर रहेंगे, कोच रहेंगे। Creative industry. यस